Students, today we will talk about general adaptations among hydrophytes. So, first of all, we will have a brief idea about hydrophytes. Hydrophytes are the plants growing in aquatic habitat. Now, if you talk about categories of different hydrophytes, hydrophytes can be categorized into five main important categories. These are free floating hydrophytes, rooted hydrophytes with floating leaves, submerged floating hydrophytes, submerged rooted hydrophytes, and the last one, amphibious, also known as emergent hydrophytes. So first of all, we will talk about free floating hydrophytes. As name indicates, these are the hydrophytes which float freely over the surface. And these are not rooted, it means they do not have any roots. They are small in size and float due to flattened body and surface tension of water. But when these are large in size, they possess special air storage organs, have extensive root systems for balancing, which keep them floating over the surface of water. Stomata are restricted to upper surface only. Examples of free-floating hydrophytes are Wolffia rhiza, Azolla, Lemna, Salvinia, Eichhornia, common known as water hyacinth, Trappa singhada, and Pistia. So here you can see pictures of free-floating hydrophytes. This is Lemna, then Salvinia, Azolla, Wolffia, also known as the smallest angiosperm plant. Here you can see number of Wolffia plants. And this is Pistia. सल्विनिया का देखते हैं आप, ये भी वाटर हाइसिंथ ही है. दूसरी कैटेगरी बात करते हैं हम, दैट इज रूटेड हाइड्रोफाइट्स विद फ्लोटिंग लीव्स. These are the hydrophytes which are rooted in mud, but leaves and floating shoots are above water surface. They grow in shallow water and possess elongated and flexible petiole or stems. Shallow water means जिसकी depth बहुत ज़्यादा नहीं होती है. Leaves bear stomata on upper surface. Upper surface इसलिए होते हैं क्योंकि जो lower surface होता है that is in direct contact with water and that do not require requirement of stomata. Mesophila is differentiated to palisade and spongy parenchyma. Examples are Victoria regia. Victoria regia, that is you can see इसका सबसे बड़ा leaf होता है. So here you can see a huge leaf of Victoria regia. Nelumbium speciosum, that is Indian lotus, nymphia. ये सारे के सारे examples are rooted hydrophytes but with floating leaves. Here you can see it is lotus. Third category is submerged floating hydrophytes. Submerged are non-rooted. ये भी नीचे मड में rooted नहीं होंगे. And submerged, that is इनकी जो body होती है that is completely inside water. They neither reach the surface nor bottom. ना तो ये bottom के ऊपर होंगे ना ही surface के ऊपर होंगे. ये बीच में water body के बिल्कुल बीच में पूरी तरीके से डूबे हुए होंगे. इनको हम इसलिए submerged floating hydrophytes बोलते हैं. लेकिन float करते हैं तो ये ना तो बॉटम पे भी नहीं मिलेंगे आपको, ना ही ये आपको सरफेस के ऊपर मिलेंगे, बीच में फ्लोट करते रहेंगे. एग्जांपल है इसका ट्रिगुलेरिया एंड सिरेटोफिलम. सो हियर यू कैन सी सिरेटोफिलम, हाईली डाइसेक्टेड लीव्स इसके होते हैं और ये इसकी वजह से फ्री फ्लोट फ्लोट करते रहते हैं वाटर बॉडी में. देन वी हैव सबमर्ज्ड रूटेड हाइड्रोफाइट्स. दीज आर अगेन प्लांट्स विच आर कम्प्लीटली इनसाइड द वाटर बट दे आर रूटेड. इनकी जो रूट्स होती हैं वो नीचे बॉटम में लगी होंगी. सो दीज आर फिक्स्ड टू सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ रूट्स एंड ग्रो एंटायरली अंडर वाटर. एग्जांपल इज हाइड्रिला, वेलिसनेरिया, आइसोटीस. सो ये हाइड्रिला है, वेलिसनेरिया, अट्रिकुलेरिया, दिस इज कारा एंड सिरेटोफिलम.
Last one category is amphibious or emergent hydrophytes. Amphibians, emergent hydrophytes, they grow in shallow water with their roots extending above water surface. Plants are rooted in mud, show both hydrophytic and mesophytic or xerophytic characters. तो इनकी जो बॉडी होती है ये रूट्स वगैरह जो होगी दैट इज़ इनसाइड द वाटर, और बाकी जो पोर्शन होगा शूट और लीव्स दे आर आउटसाइड द वाटर. दे आल्सो शो हेट्रोफिली. सबमर्ज लीव्स आर डाइसेक्टेड एंड एरियल लीव्स आर लार्ज. जो लीव्स, क्योंकि ये ऐसे प्लांट्स हैं जो आधे पानी में होंगे और आधी इनकी प्लांट बॉडी जो होगी बाहर होगी. सो दोज लीव्स विच आर सबमर्ज्ड आर हाईली डाइसेक्टेड, वेयर आर द एरियल लीव्स विच आर आउटसाइड वाटर आर लार्ज एंड ब्रॉड. एग्जाम्पल्स है इसमें मार्सिलिया है, रेनकलस है, सेजिटेरिया है, टाइफा है, साइप्रस है. सो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स है इसमें. नाउ वी विल टॉक अबाउट मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस. अब जो आपको पिछली कैटेगरीज बताई गई थी वो इसलिए बताई गई ताकि आप जब भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो आपको उस एग्जाम्पल्स का पता होना चाहिए. तो जितने भी प्लांट्स यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं यू शुड नो कि उनकी जो डायग्राम है और उनकी जो कैटेगरी है वो कौन सी है, वो कम्प्लीटली हाइड्रोफाइट्स है. क्योंकि जब भी आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे, अगर ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है देन यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम ऑल्सो. जैसे सपोज करो आपको 8 to 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाइड्रोफाइट्स की एडेप्टेशंस के बारे में, तो जब आप इसमें लिखेंगे देन यू मस्ट ड्रॉ डायग्राम ऑल्सो. सो व्हाट आर द मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस. मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस वो एडेप्टेशन होती हैं जो बाहर से दिखती हैं हमें. उसकी रूट्स कैसी हैं, उसकी शूट्स कैसे हैं, उसका लीफ का साइज कैसा है, उसका शेप कैसा है. दीज आर नोन एज मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस. तो व्हाट आर मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस. अब एडेप्टेशन की बात इसीलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्मल जो आपका प्लांट्स होता है जो नॉर्मली बाहर ग्रो करते हैं वाटर बॉडी के, वो उनके पास इतनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी नहीं होती कि आप उनको कम्प्लीटली वाटर में. अदरवाइज़ आपने देखा होगा कि अगर आप नॉर्मल प्लांट जो आपके जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के प्लांट्स हैं उसको आप पानी से भर देंगे उस सॉइल को, अगर आप या फिर उस फील्ड में जहाँ पे ग्रो कर रहे होंगे, तो वो प्लांट ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. इसलिए नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे आर नॉट अडेप्टेड टू दैट एक्वाटिक हैबिटेट. लेकिन ये जो प्लांट्स हैं हाइड्रोफाइट्स जो पानी के अंदर ही हैं, पानी के अंदर होने के बावजूद भी वो वहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं अपनी. तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर कुछ ऐसी अडेप्टेशंस कर ली हैं. सो बेसिक जो हमारा आज का टॉपिक है वो यही था कि क्या अडेप्टेशन है हाइड्रोफाइट्स की. तो पहले हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस की. तो पहली अडेप्टेशन है रिगार्डिंग रूट्स. सो रूट्स आर आइदर एब्सेंट और पुअरली डेवलप्ड. तो जितने भी हाइड्रोफाइट्स हैं उसके अंदर रूट सिस्टम या तो एब्सेंट रहेगा या अगर रूट सिस्टम है भी वो तो बहुत पुअरली डेवलप होगा. क्योंकि रूट्स को हम बोलते हैं दे आर द मेनली वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स. तो यहाँ पे वाटर की अबंडेंसी है तो उसके लिए रूट्स को बहुत ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है. रूट्स नहीं भी होंगी तब भी प्लांट के और दूसरे जो ऑर्गन है वो डायरेक्ट पानी के कॉन्टैक्ट में होने की वजह से वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है. सो वैसी ही बात यहाँ पे जितना भी न्यूट्रिशन होगा वो रेडिली अवेलेबल रहेगा वाटर के अंदर में. इसलिए रूट्स को बहुत ज़्यादा डेवलप होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती या फिर उसमें आइदर एब्सेंट होता है. एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स इन विच रूट्स आर एब्सेंट आर वुल्फिया, सेरेटोफिलम एंड एट्रिकुलेरिया. रूट हेयर्स आर एब्सेंट इन फ्लोटिंग फॉर्म्स. तो रूट हेयर्स का भी वही काम रहता है क्योंकि रूट को हम बोलते हैं एब्जॉर्बिंग ऑर्गन, लेकिन एक्चुअली में जो उसकी जो अंदर स्ट्रक्चर होती है विच रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन, दीज आर एक्चुअली रूट हेयर्स. रूट कैप्स आर रिप्लेस्ड बाय रूट पॉकेट्स इन आइशोर्निया एंड लेमना. सो यहाँ पे आपने देखा होगा जब भी हम रूट की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसके टिप के ऊपर हम रूट कैप देखते हैं. तो रूट कैप इज़ मेनली प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ रूट, क्योंकि रूट सॉइल के अंदर जब जाती है तो उसको पेनिट्रेट करती है. तो वहाँ पे उसको डैमेज से बचने के लिए सेल्स को, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं रूट टिप के ऊपर, तो उनको बचाने के लिए एक रूट कैप होती है. लेकिन यहाँ पे इस तरीके का सिस्टम नहीं है तो इसलिए यहाँ पे जो रूट्स कैप्स होते हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय रूट पॉकेट्स. नाउ अडेप्टेशंस रिगार्डिंग स्टेम. शूट सिस्टम रिड्यूस्ड इन फ्लोटिंग फॉर्म्स. जितने भी फ्लोटिंग फॉर्म्स होंगी उसमें शूट सिस्टम जो होगा जिसको हम स्टेम बोलते हैं दैट इज रिड्यूस्ड. इन सबमर्ज्ड फॉर्म स्टेम इज स्लेंडर, स्पॉन्जी एंड फ्लेक्सिबल. और जितनी भी सबमर्ज्ड फॉर्म में जो
ऐसे हाइड्रोफाइट्स जो कम्प्लीटली पानी के अंदर हैं, उन पे जो स्टेम होगा वो सिलेंडर होगा, स्पॉन्जी होगा एंड फ्लेक्सिबल होगा। फ्लेक्सिबल इसलिए होता है क्योंकि रिजिड नहीं होगा। वाटर अगर करंट, क्योंकि कई जगह क्या होता है रनिंग वाटर स्ट्रीम के अंदर में ये हाइड्रोफाइट्स ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे जब फ्लडी सिचुएशंस बनती हैं तो उसकी वजह से जो प्रेशर पड़ता है, अगर स्टेम बहुत यहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं होगा, वो एक ही जगह पे होगा या बहुत हार्ड होगा, तो वो वाटर के करंट से, वाटर की फोर्स से टूट जाएगा। लेकिन फ्लेक्सिबल होने की वजह से क्या करता है, वो जो प्लांट है वो उसी डायरेक्शन के अंदर बैंड हो जाता है, तो जिसकी वजह से प्लांट्स के अंदर किसी भी टाइप की ब्रेकेज नहीं आती है। इन नेपच्यूनिया ओलरेसिया स्टेम इज सोलन एंड स्टोर गैसेस। और बहुत सारे प्लांट्स के अंदर में जो स्टेम होता है वो सोलन होता है और गैसेस को स्टोर करता है। तो गैसेस के स्टोर करने की वजह से एक बायोन्सी प्रोवाइड होती है और उसकी वजह से वो फ्लोट नहीं करता है। आप एक ट्यूब लेके पानी में उतरते हैं, वो ट्यूब के अंदर क्या होता है, उसके अंदर पूरी गैस भरी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ट्यूब फ्लोट करती है। तो वैसे ही इन प्लांट्स के अंदर भी इनकी जो स्टेम होती है उसके अंदर बहुत सारी गैसेस स्टोर रहती हैं, और उस गैस की वजह से वो जो स्टेम होता है वो सोलन बनता है और वो एक बायोन्सी प्रोवाइड करता है और वो प्लांट बॉडी को फ्लोट करने में हेल्प करता है। इन निम्फिया एंड एलम्बो स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू राइजोम्स। तो कई जगह जो स्टेम है वो मॉडिफाई कर जाता है राइजोम में। एंड इफ यू टॉक अबाउट मॉडिफिकेशन या अडेप्टेशंस with respect to leaves, then leaves are thin and highly dissected. लीव्स बहुत थिन होंगे, हाईली डायसेक्टेड होंगे। डायसेक्टेड मीन्स बीच में से कटे होंगे। रिबन शेप्ड इन सबमर्ज्ड फॉर्म्स। और ये होता है कि वाटर के फ्लो को रोकने के लिए, खासकर जो सबमर्ज्ड फॉर्म होते हैं उसके अंदर जो लीव्स होते हैं वो दे आर हाईली डायसेक्टेड, क्योंकि पानी मूव करता है वो, तो अगर वो हाईली डायसेक्टेड होंगे तो बीच में से पानी निकल जाएगा, लेकिन तो उसकी वजह से उसका सरफेस एरिया जो है रिड्यूस होता है। लेकिन अगर लीव बहुत बड़ा होगा और वो डायरेक्ट फ्लो में होगा, वाटर के करंट के आगे आगे आएगा, तो वो उसके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन अगर लीफ डाइसेक्टेड है, रिबन शेप्ड है, तो वो फिर पानी का करंट का उसके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पीटियोल इज़ लॉन्ग सोलन स्पॉन्जी। पीटियोल जिसको हम बोलते हैं स्टॉक ऑफ लीफ होता है, दैट इज़ लॉन्ग सोलन एंड स्पॉन्जी होता है, तो इसकी वजह से स्पॉन्जी होने की वजह से वो उसको बायोन्सी प्रोवाइड करता है और वो फ्लोट करने में हेल्प करता है। फ्लोटिंग लीव्स आर लार्ज, फ्लैट, थिक एंड हैव वैक्सी कोटिंग। लेकिन ऐसे लीव जो फ्लोट करते हैं, तो बहुत सारे प्लांट्स की हमने बात की जिनके जो लीफ होते हैं वो सरफेस के ऊपर, बाकी प्लांट बॉडी उनकी वाटर के अंदर होगी, लेकिन लीफ जो होगा वो टॉप के ऊपर वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। तो वहाँ पे जो लीव्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, फ्लैट होते हैं, थिक होते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्लांट्स विच आर कंप्लीटली सबमर्ज्ड इनसाइड द वाटर possess highly dissected leaves, but those whose leaves are over the surface of water body, they are large, flat, thick and have waxy coatings. And plants show heterophyly. heterophyly का मतलब क्या होगा कि plants दो टाइप के, डिफरेंट टाइप्स के लीव्स को शो करते हैं, उसको हम हेटेरोफिली बोलते हैं। जैसे हम एमरजेंट हाइड्रोफाइट्स की बात करते हैं, एम्फीबियस की बात करते हैं, तो उनके जो लीव पानी के अंदर होते हैं वो डायसेक्टेड होते हैं और जो बाहर होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस। एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस में क्या बात होती है, यह भी इंटरनल सेल और टिश्यू कैसा है उसका इंटरनली जब बात करते हैं तो उसकी अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन होती है। एपिडर्मल सेल्स आर थिन वॉल्ड इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। तो पहली तो अडेप्टेशंस ये है कि एपिडर्मल सेल्स थिन वॉल्ड हैं। क्यूटिकल इज़ नॉट डिस्टिंग्विशेबल, क्योंकि क्यूटिकल जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है एपिडर्मिस के लिए वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हेयर्स आर एब्सेंट ऑन द सरफेस ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट्स। फोर्थ इज रिगार्डिंग स्टोमेटा। स्टोमेटा इज एब्सेंट और नॉन फंक्शनल इन सबमर्ज्ड पार्ट्स। तो ऐसे सबमर्ज्ड पार्ट्स जो लीव्स पानी के अंदर कम्प्लीटली सबमर्ज, जो ऐसे लीव्स जो पानी के अंदर बिल्कुल सबमर्ज हैं, डूबे हुए हैं, उसमें स्टोमेटा या तो एब्सेंट होगा, अगर हैं भी है तो वो नॉन फंक्शनल होंगे। और बहुत सारे प्लांट्स जो वाटर के बॉडी के ऊपर फ्लोट करते हैं उसके जो लीफ होता है उसमें अपर सरफेस के ऊपर ही सिर्फ स्टोमेटा आपको मिलते हैं। एंड मैनी फ्लोटिंग एंड सबमर्ज्ड प्लांट्स पोजेस वाटर स्क्रीटिंग हाइडाथोड्स। पिस्टी और आइशोर्निया में वाटर स्क्रीटिंग भी होते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी ऑब्जर्व कर लेंगे तो उसमें से उसको रिलीज़ करने का भी उनके पास मैकेनिज्म रहता है। एपिडर्मल सेल्स आर परमेबल टू वाटर एंड गैसेस। परमेबल मीन्स कि दे अलाउ एंट्री फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर एंड गैसेस।
Plant possesses aerenchyma or lacunar system of large and wide air space for storage of gases. If you cut the section of petiole and stem of hydrophytes, then you will see aerenchyma. Aerenchyma एक टाइप का टिश्यू होता है which is having large air spaces. तो air spaces होने की वजह से क्या होगा, उसमें space होता है, उसमें air भरी होती है, और air भरी होने की वजह से फिर वो एक बायोन्सी प्रोवाइड उस प्लांट ऑर्गन को करता है, जिसकी वजह से वो प्लांट पूरा फ्लोट करता है. मैकेनिकल टिश्यू लाइक कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा आर एब्सेंट इन सबमर्ज्ड प्लांट्स. तो मैकेनिकल टिश्यू इसमें एब्सेंट होंगे क्योंकि यहाँ पे उसको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में है, तो इसके लिए इन टिश्यूज़ को ज़्यादा बनाने की इनके पास ज़रूरत नहीं पड़ती है. कॉर्टेक्स यूजुअली ग्रीन एंड कंटेन क्लोरेनकाइमेटस सेल्स. तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए है. एंडोडर्मिस इज पूरी डेवलप्ड एक्सेप्ट इन फ्लोटिंग एंड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स. वी एक्ट एज वाटर टाइट जैकेट टू अवॉइड डेसिकेशन. तो एंडोडर्मिस का काम जो होता है वो बेसिकली एक वाटर टाइट जैकेट का काम ये करता है, लेकिन यहाँ पे वो वाटर के लॉस को करने के लिए होता है. लेकिन यहाँ पे वाटर के लॉस को करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वाटर इन प्लांट्स के पास अबंडेंसी में प्रेजेंट है. वास्कुलर बंडल्स इफ प्रेजेंट आर ग्रुप टुवर्ड्स द सेंटर अपार्ट फ्रॉम द पेरिफेरी शोज दैट प्लांट डू नॉट रिक्वायर मैकेनिकल सपोर्ट. वास्कुलर सिस्टम भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं डेवलप होगा इनके पास. वास्कुलर टिश्यू पूरली डेवलप्ड इन सबमर्ज्ड प्लांट्स. तो वास्कुलर सिस्टम जो होता है वो सप्लाई के लिए होता है बेसिकली, जैसे मिनरल न्यूट्रिशन जाइलम लेके जाता है. तो यहाँ तो वो सिस्टम तब डेवलप होता है जब दूर तक प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स तक उसको पहुँचाना होता है, लेकिन यहाँ पे पानी की कोई इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए वास्कुलर सिस्टम जो होता है वो पूरली डेवलप इसमें रहेगा. सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट. एंड another important feature is that summer leaves contain only spongy parenchyma. So otherwise leaves में अंदर क्या होता है, मीजोफिल जो होती है वो डिफ्रेंशिएट करता है पेलिसेड और स्पॉन्जी के अंदर में. जो एरियल लीव्स हैं, एरियल लीव्स मीन्स जिनके लीव्स प्लांट के जो वाटर बॉडी है जहाँ पे ग्रो कर रहे हैं उससे बाहर अगर हैं, लेकिन जो पानी के अंदर लीव्स हैं उसके अंदर एक ही टाइप का टिश्यू मिलता है, दैट इज स्पॉन्जी पेरेनकाइमा. क्लोरोप्लास्ट आर लार्ज एंड न्यूमरस. They are also present in epidermal cells of leaves and stems. Fruits and seeds have air cavities to assist them in water dispersal. तो इन प्लांट्स में जो फ्रूट्स और सीड्स होते हैं वो भी एयर कैविटी होती है, क्योंकि एयर कैविटी की वजह से होने की वजह से वो भी वाटर का जो बॉडी है, जैसे सरफेस के ऊपर हम बोलते हैं कोई आपके पास लेक है या कोई पॉन्ड है या कोई रिवर है, तो उसमें ये फ्रीली फ्लोट करते रहेंगे क्योंकि इनका डिस्पर्सल होने में हेल्प करते हैं. डिस्पर्सल बोलते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट इज नोन एज डिस्पर्सल. ना फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन में आती है उनकी एक्टिविटीज रिलेटेड. तो इसमें ऑस्मोटिक जो पोटेंशियल है वो यूजुअली वेरी लो रहता है इसमें. सबमर्ज्ड प्लांट्स क्रिएट म्यूसिलेजेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रिक्शन एपीफाइट्स एंड डिकेइंग फैक्ट्स. तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है उसको एक म्यूसिलेजेंस क्रिएट करती है ताकि इनकी जो स्टेम है, अगर क्योंकि बार बार इनकी फ्रिक्शन होती रहती है पानी के अंदर ये होते हैं, इसलिए जैसे जैसे पानी मूव करता है वाटर के करंट के साथ में ये इनकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती रहती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन हो सकती है. बहुत सारे प्लांट्स हैं आपस में भी उनमें एक दूसरे से टकरा सकते हैं, या किसी रॉक है या कोई और चीज़ें इस तरीके से सबस्ट्रेटम वाटर बॉडी में है, तो उस फ्रिक्शन के इफेक्ट को कम करने के लिए ये म्यूसिलेजेंस क्रिएट करते हैं जो इनकी प्लांट ऑर्गन्स के ऊपर रहता है. और एक्सेसिव वाटर जो होता है उसको एक्सीड कर सकते हैं थ्रू हाइड्रोथॉट्स. तो हाइड्रोथॉट्स इनके पास स्पेशल एक ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसको वाटर स्क्रीटिंग स्ट्रक्चर हम बोलते हैं. दे स्टोर गैसेस, तो ये भी एक्टिविटी में आएगा इनका. दे रिड्यूस, और इसमें जो फ्लावरिंग और फ्रूट्स होते हैं वो रिड्यूस होते हैं क्योंकि मोस्टली ये वेजिटेटिवली ही प्रोपोगेट करते हैं. एंड दे ऑल्सो हैव पुअर सीड जर्मिनेशन. सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट adaptations of hydrophytes. So whenever a question is asked regarding adaptation of hydrophytes, so first of all you should read the questions, क्योंकि कई बार स्पेसिफिक पूछा गया होता है कि आपने मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन ही देनी है या एनाटॉमिकल अडेप्टेशन ही देनी है. अगर जनरल अडेप्टेशन पूछा गया है तो आपको सारी अडेप्टेशन बतानी है, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स with supporting diagrams.